नमस्कार। Namaskar, brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, teachers and trainers, professors and professionals, listeners and learners, those who are listening, watching. It is really praiseworthy, admirable and appreciable moment that God has provided us to appreciate our Indian holy motherland. Dear friends, present time is the time with golden opportunity to appreciate, to recollect, remember our Indian holy motherland. To be nationalistic and patriotistic person of this society, how we can be proved a great resourceful person of this society. It is possible by improving our daily routine. Our daily routine depends upon yoga, pranayama and meditation. If we get up early in the morning, before sun rising, it improves our different skills. Our youngsters become great messenger of God from the holy motherland of India. Day by day, month by month, year by year, man's worldly time decreases. Because of this materialistic age, we all are in materialistic world. Our forefathers, freedom fighters, free thinkers, those who born in India, they address us to spend the time with nature. Nature is the common concept of all holy religions of this holy land. Our saints, sacrificial bodies, those who came in India, they spent their maximum time with this holy motherland. So, for our frustrations, depressions and anxieties, worries, we must remember, recall our freedom fighters, starters, beginners and initiators, because this holy motherland is known as the land of multi-dimensional, multi-sided and multifaceted personalities. All the personalities, those who born in India, they addressed worldly people for the moral values, ethical values, spiritual values. This human life
is rare, it is not commonly obtained, and our soul is surrounded with sensual pleasure, arrogances, negativities, ego, obviousness, falsification. These are the things that always disturbs our soul to get rid from this cycle of birth and death. But our great man addressed us how the creation of this universe was formed. It is really mysterious. In the different holy books of literature, we read that Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who born in 1469, before the discovery of India, he came in the form of light in the dark, addressed to the worldly people that there is the presence of Lord or God in air, fire, soil, sky and water. Even our great man addressed that we feel the presence of him in lightless and soundless places also, according to Swami Vivekananda. So our great man addressed us to be continuous and be regular for getting our goal, for achieving salvation, for obtaining greatness in life. Our great men, our youngsters, those who have high ideology for this holy motherland, definitely they can achieve their goal by continuity, by their unrelenting, unceasing and unstopping efforts. After getting any post degree, we cannot stay and stand anywhere, but we are to go on. It is said that if we are the true lover of this holy motherland, then we cannot be fearful from our weaknesses, drawbacks and shortcomings, because history is the evidence of it. All the personalities to whom we read, they have faced numberless challenges and problems in their life. Like Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he was disrespected at one place, but he welcomed them, he blessed them, and the persons, those who respected him, he told them to stay and stand there where they are. Likely that Saint Kabir written that critics should be in our neighboring area for cleaning us. He is the true cleaner. Likely that Shahanshah ke Shahanshah Shah Mastana Ji Maharaj, starter of Sacha Soda, also welcomed such critical persons. Our all forefathers, foretellers, forecasters addressed this thing to the worldly people. We should never care about our praise, admiration or appreciation, because we are made by 5 elements: air, fire, soil, sky and water. And if we are doing something good for others, then these 5 elements are the evident. Moreover, we can say in the daytime the sun, in the night time the moon,
the stars, sky, the earth, these are the planets, these are the holy members of the Lord or God, those who are always obedient to God, and they will appreciate us, and by doing good deeds, good works, in return of that definitely we will get reward or award. So never care in this life about our expectations or desires. If unexpectedly and desirelessly we are working, then definitely we will achieve the highest goal of life. According to the Holy Scripture, Holy Bhagavad Gita, it is said that action is our religion. So, without being fearful, we must be obedient in presence of Lord or God. We should never feel the absence of Lord anywhere. It is said by our holy great men. As we have discussed earlier that our great men addressed us, do good, have good. And it is also further written by them, elevate the grace of land to which you really belong. Indelible would be but thy fame if it is kept up along. Adopt life with liveliness, never succumb to fears, never goes to that extent which brings others to tears. Our great men have not left any stone unturned. Further they say that don't fall out with each other, deem what is good in man, follow the point to the cause if thou wish to discard pain. The ancient glorious tradition are to teach and learn, disobedience, offense, ill words, hit the tables turn. Those who commit sincerely patriotism and prayer attain spiritual peace, divine glimpse, the social status, whatever there. So dear friends, प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सितंबर के महीने में जो 23 सितंबर का दिन, जिस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं, हर दिन अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। जियोग्राफिकली जो हम देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, हर दिन और हर त्यौहार, भारत के उत्साह और उमंग से भरे हुए त्यौहार हमें हमारे मातृभूमि की याद दिलाते हैं, हमारे जीवन मूल्यों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ये भारत की धरती संत, महापुरुष, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, योगी, त्यागी, तपस्वियों की धरती कही जाती है। और हमारे महापुरुषों ने लिखा, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नूर। हमारे महापुरुषों ने लिखा कि हे माता, अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो पहले नंबर पे वह भगत हो, शूरवीर हो, योद्धा हो, देने वाला हो, अन्यथा वह माता ने अगर उस बच्चे को जन्म ना देती तो अच्छा था। ये हमारे महापुरुषों ने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जब धरती पर पाप, जुल्म, अपराध बढ़ते हैं तो उन्हें मिटाने के लिए संत महापुरुष एक माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसलिए माँ का दर्जा बहुत ऊंचा बताया गया है मृत्युलोक के अंदर। वही माँ है जो इतने इतने बड़े महापुरुषों को जन्म देती है, और यदि
वो संतान बिगड़कर शैतान बन जाती है तो लानत भी उस माँ को ही पड़ती है। इसलिए माँ के बारे में हमारे महापुरुषों ने लिखा कि जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रही काहे गवावे नूर। तो भाइयों बहनों, ये जो समय का दौर चल रहा है, इस दौर में हर तरफ स्वार्थ का बोलबाला है। गर्ज स्वार्थ के बिना काम चलता नहीं कहते, लेकिन हमें हर समय हर पल हर जगह उस भगवान ईश्वर अल्लाह राम गॉड वाहिगुरु की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी को हाजिर समझना है, ताकि हम हमारे मार्ग से भटके नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने वाले बने। जैसा कि भारत आज देखते हैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि जब भारत 2047 में 100 वर्ष पूरे करेगा तो भारत जो है वो एक्सप्लोरर, एक्सपोजर और एक्सपोर्टर होगा। और आज भी हम देखते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इन्वेंटिव और इनोवेटिव चेंज नहीं आए हुए हैं। आज भारत 5G का प्रयोग करने लगा है, जिसकी शुरुआत 1G से हुई थी और आज 5G तक चला गया। लेकिन फिर भी भारत ने इस प्रकृति की हैसियत को जिंदा रखा है। प्रकृति के साथ वैसा ही आज भारत का संबंध स्थापित है। हर घर के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को हर कोई जिंदा रखे हुए है कि एक पौधा माँ के नाम लगाना है। तो ये 145 करोड़ की जनता अगर एक पौधा लगा रही है, उसकी संभाल कर रही है, तो वातावरण में अनेक प्रकार की बीमारियां, प्रदूषण ये स्वतः ही समाप्त होते चले जाते हैं और भारत के युवा फिर से स्वस्थ होकर के रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के अंदर जुड़ेंगे। तो ये वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, उद्योग का है, कम्युनिकेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, किसी भी क्षेत्र के अंदर भारत पीछे नहीं होगा। क्योंकि आज देखिए आप 5G के शुरू होने से सब प्रकार की सेवाएं सबके घर तक पहुंच गई हैं, घर तक ही उनको सेवाएं देने के लिए पहुंचा जा रहा है। तो ये जो सेवाओं का क्रम है, ये भारत की भूमि के ऊपर बहुत बड़ा धरती माता का आशीर्वाद है। तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं कि हर प्रकार की सेवा हमारे घर तक पहुंच रही है और हमारे मानवीय मूल्य, भारत का अध्यात्म, भारत की संस्कृति की बहुत बड़ी विभिन्नता में एकता की पहचान वो घर घर में झलकती है। हर समय हर पल हर जगह प्रकृति के विभिन्नताएं, विविधताएं, अनेकताएं देखने को मिलती हैं। यही तो है भारत की अद्भुत शक्ति, जो कि प्रकृति ने इसको शुरू से ही प्रदान की है और हमारे महापुरुषों ने हमें इसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आज भी और हमेशा से ही ये रहा है कि कोई ना कोई योद्धा, शूरवीर इस धरती पर जन्म लेते हैं, जो इस धरती का उद्धार करने के लिए पैदा होते हैं। तो ऐसे शासक प्रशासक भी धन्यवाद करने के काबिल होते हैं, जो मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए, हर प्रकार के कार्यों के लिए सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। तो सब मिलकर के जब मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए आगे आते हैं तो सामाजिक बुराइयां भी दूर होती हैं, व्यक्तिगत कमजोरियां भी दूर चली जाती हैं और एक स्वच्छ समाज का निर्माण का सपना हमारे महापुरुषों का पूरा होता है। हमारे महापुरुषों ने कभी बुराई के सामने शीश नहीं झुकाया, बल्कि वे उनसे लड़े और जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद फिर उन्होंने इस पर पहरा भी दिया कि कोई ऐसा इस आत्मा के चारों ओर रहने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन में विषय विकार अटैक न करें। ये है असली आक्रमणकारी, जिससे आत्मा को बचाना है। यही तो हमारे महापुरुषों ने लिखा कि बाहर हमें चोर, ठग, धोखेबाज नजर आते हैं, जबकि ये सब हमारे आत्मा के चारों ओर रहते हैं। सोए हुए भी आत्मा को लूटते रहते हैं ये चोर, और इनसे सावधान रहना
यही हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि ईश्वर नाम अनमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये अचरज है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, फिर भी बिना मोल भाव के हमारे संत महापुरुष इस धरती पर देने के लिए आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि ग्राहक फिर भी कम आते हैं। है घट में सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। तो संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस जीव को मोतिया बिंद हो गया है। मोतिया बिंद होने से मतलब खाली डॉक्टरी भाषा के अंदर, मेडिकल साइंस में, कि क्या मानते हैं, मोतिया बिंद होने से मतलब एक परत चढ़ गई है, असलियत छुप गई है। कैसे? है घट में, कि घट घट में रहने वाला भगवान, हर पल हर समय रहने वाला भगवान, वो इसको नजर नहीं आता है, झूठ ही झूठ नजर आता है। सत्य की पहचान ये आंखें नहीं कर पाती हैं। उस स्थिति के अंदर ये असली मोतिया बिंद है। संसार का मोतिया बिंद फिजिकली जो हुआ है, मेडिकली वो डॉक्टर ट्रीट कर देते हैं, लेकिन वो मोतिया बिंद जो है उसका इलाज तो परमपिता परमात्मा का, ईश्वर का नाम है। और आत्म बल सफलता की कुंजी जिसे बताया गया हमारे महापुरुषों के द्वारा, वो किसी और मेडिकल साइंस में या किसी मार्केट में या किसी अदर ब्रांच के अंदर अवेलेबल नहीं, बल्कि वो आत्मा की शक्ति आत्मा के अंदर ही है। क्योंकि आत्मा खुद ही अपने आप में भगवान के नाम के द्वारा शक्ति को हासिल करती है और आत्म बल प्राप्त करती हुई इतना बल प्राप्त कर लेती है कि ये परमपिता परमात्मा के अंदर समा जाती है। तो फिर ये अपनी हस्ती को मिटा देती है। और यही है कि जैसे एक समुद्र से अनेकों नदियाँ निकलती हैं और नदियाँ अलग अलग मार्ग तय करती हैं, परंतु उसके बाद अंततः वह एक ही जगह जाकर के मिल जाती हैं, उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं और अपनी हस्ती को गवा बैठती हैं। ऐसे ही इस आत्मा का है कि अनेकों धर्म, जातियाँ, मजहब के अंदर पैदा होने वाले महापुरुष, जिनका एम, जिनकी मंजिल परमपिता परमात्मा से मिलाना है, उनके रास्ते अनेक हो सकते हैं, परंतु उनका मंजिल, उनका निशाना सबका एक ही है। और जब ये आत्मा उस परमपिता परमात्मा से मिल जाएगी तो फिर स्वतः ही ये अपने निजधाम, सचखंड, सतलोक, अनामी जिसे कहा गया, उस धाम के अंदर, उस निजधाम के अंदर जाकर के समा जाएगी और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। यही हमारे महापुरुषों ने लिखा कि इस देही को सिमरा देव, इस मनुष्य शरीर का सुमन करते हैं, देवी देवता भी करते हैं, इतना कीमती है ये शरीर। और इसे योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन के बिना यदि हम बिताते हैं तो हम बहुत बड़े अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों ने लिखा है, इस देही को सिमरा देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाहो। कि मनुष्य जन्म का यदि लाभ उठाना है तो वो कैसे होगा? जब हम इसमें इस दो काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? गुरु सेवा ते भगत कमाई, गुरु की सेवा करनी है। गुरु के हुक्म से, जिस भी गुरु को हम मानते हैं, जिसके प्रति हम अपनी वफादारी रखते हैं और उसकी सेवा का, उसके हुक्म में रह के करते हैं। और दूसरा भक्ति, जिससे की करने से हमें शक्ति आती है, मस्ती, आनंद आता है, आत्म बल हासिल होता है और मन के लगाम लग जाती है। तो फिर क्या लिखा हमारे महापुरुषों ने? इस देही को सिमरा देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मनुष्य जन्म का ये ही लाहो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल ये देश संजरिया। बड़े ही लंबे समय के बाद ये एक अवसर, एक वारी हमें हाथ आई है, इसलिए हमें इसे खराब नहीं करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने लिखा है
ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾਮ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਦਾ, ਹਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦੇ ਢੇਰ ਤੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ, जाके उस शाह नूं की जवाब दे सैं जिसकी रकम तू खर्च करा बैठा, साईं लोका तेरी की सौदागरी है, राम भी हट्टी ते चोर बहा बैठा। यानी एक ऐसे चोर जो हमारे को दिन रात लूटे जा रहे हैं, 700 रुपये कीमती पूंजी बर्बाद हो रही है और हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं। जगत जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, तो ये पता नहीं कब हुक्म आ जाए उस कुदरत का। उसने ये नहीं देखना कि हम बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, कुछ भी नहीं देखना उसने। जब समय पूरा हो गया तब हमें इस शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। लेकिन जो महापुरुष उनकी अपने गुरुओं के भजन में लीन रहते हैं, उनको सब संकेत मिलते रहते हैं और वे अपनी हमेशा तैयारी करके रहते हैं और वे उससे घबराते नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने लिखा, कबीरा जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, इस मरने ही दे पाइए पूर्ण परमानंद। क्योंकि जीते जी मरना सीख लेना ही सबसे बड़ा प्रशिक्षण कर लेना है। योग, ध्यान, प्राणायाम, आसनों की विधियों से अपने आप को स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ रखना है और फिर उसमें परमपिता परमात्मा को सर्वोत्तम स्थान देना है। और जो भी हम कर्म करते हैं उसे अपना कर्मा धर्मा, हमारे महापुरुषों ने लिखा है, कार्य ही पूजा है, उसे हमें करना है और हर समय भगवान का धन्यवाद ही करना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सोचना है। श्री कृष्ण जी महाराज भागवत गीता के अंतिम उपदेश के अंदर बोलते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए हमें अच्छा सोचना ही हमें अच्छा बुलवाएगा, अच्छा करवाएगा। तो जरूरी है, लाजमी है कि हम हर जगह, हर पल, हर समय भगवान की उपस्थिति को ही अंदर महसूस करें, ताकि हम अपने निज मुकाम को प्राप्त कर सकें, असली उद्देश्य को जीवन के हासिल कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका धन्यवाद सभी का, भाई बहनों का।